kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome to our EVS learning. Students, we can see various types of plants growing around us. Students, plants and animals both are very important in our life. Students, have you ever thought where would we be without these trees? So today we shall learn a very interesting story of a girl named Amrita who was a real tree lover. Let's see what happens in this story. Let's begin. The story of Amrita. Children, this is a story from long ago of a girl named Amrita who used to live in a village called Khejari of Rajasthan. As we are talking about the state Rajasthan, do you know where Rajasthan is located? Student, this is the map of India. Let's try to locate Rajasthan on the map of India. Can you see this yellow part? Yes, that is Rajasthan, a beautiful desert state located in the northwestern part of India. Children, Jodhpur is located in Rajasthan and near it lies a village called Khejari, and we are going to talk about this Khejari village. Now, why is the village named Khejari? The village got its name because many Khejari trees grew there. The people of Khejari took good care of plants, trees and animals. They used to say, if trees are there, then only we can survive. सो स्टूडेंट्स, खेजाड़ी जो नाम है विलेज का वो खेजड़ी ट्री की वजह से रखा गया था और वहाँ के लोग ऐसा बोलते थे कि अगर पेड़ है तो हम हैं. Students, do you know that this Khejari tree is found mainly in the desert area? ये जो खेजाड़ी ट्री है वो डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ये है ना ग्रो हो सकते हैं, थोड़ा भी अगर पानी हो तो ग्रो हो सकते हैं. इट्स बाग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन. उसका जो बाग रहता है खेजाड़ी ट्री का बाग, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्चर में दिखाया, देखो इसको बाग बोलते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर होता है ना स्टेम का, उसको बाग बोलते हैं. मेडिसिन बनाने में हेल्प होता है वो. पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट्स, जिसको हम बीन्स बोलते हैं. खेजाड़ी ट्री के जो वुड होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उससे है ना इंसेक्ट्स अफेक्टेड नहीं होते. एंड डू यू नो स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो इस एरिया में रहते हैं खेजाड़ी ट्री के लीव्स खाते हैं. एंड चिल्ड्रन जो तुम्हारे जैसे रहते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, वो लोग इस ट्री के शेड में खेलते हैं. दे प्ले इन द शेड ऑफ द ट्री. मूविंग फर्दर, अमृता's फ्रेंड्स. नाउ ये अमृता के फ्रेंड्स कौन थे, चलो देखते हैं. अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज़. तो अमृता के फ्रेंड्स कौन थे, उसके ट्रीज़. शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे एंड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर, friend, you are strong and beautiful. You care for us. I love you very much. Make me also like you. वो अपने फ्रेंड्स को बोलती थी, ट्रीज़ को बोलती थी कि फ्रेंड तुम कितने स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल हो और तुम हमारा ध्यान भी रखते हो. आई लव यू वेरी मच. मुझे भी तुम्हारी तरह स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनना है. Like Amrita, other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. अमृता की तरह दूसरे बच्चे भी पेड़ की छाँव में खेलते थे. उनके भी स्पेशल ट्रीज़ होते थे. Now comes the trees in danger part. What happens? Let's see. Time went by. Amrita now was grown up. One day she went to greet her trees. She saw some strangers there. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut the trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. Students, now Amrita बड़ी हो चुकी थी और अमृता की डॉटर्स भी थे. लेकिन एक दिन वो अपने पेड़ों को ग्रीट करने गई. तब उसने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे एक्सेस लेके खड़े हैं. उन लोगों ने कहा कि ये जो है हम ट्री को कट करने आए हैं क्योंकि हमें वुड चाहिए ताकि हम किंग के पैलेस को बिल्ड कर सके. किंग का ऑर्डर है. अमृता वॉज शॉक्ड. शी वेंट टू द ट्री दैट द मैन वर अबाउट टू कट. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. On seeing this, Amrita's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita,
and her daughters died to save the trees. So students, जब अमृता को पता लगा कि ट्रीज़ को कट करने आए हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो गई। वो ट्री के पास गई और ट्रीज़ को टाइटली हग कर दिया उसने। अब मैन जो थे वहाँ पे जो कट करने आए थे वो उसने अमृता को धमकी दी, चिल्लाया, लेकिन अमृता ने ट्री को जाने नहीं दिया। अमृता को देखकर उसकी बेटियाँ और 100 ऑफ विलेजर्स ने भी सारे ट्रीज़ को पकड़ लिया और उसको प्रोटेक्ट किया। अब किंग का तो ऑर्डर था कि ट्रीज़ को कट करके लाने के लिए, तो ये जो ट्रीज़ को कट करने आए थे वो लोगों ने इन लोगों की जान भी ले ली। और ये लोगों ने, अमृता ने, उसकी बेटियां ने और जितने लोगों ने भी ट्रीज़ को हक करके रखा था, ट्रीज़ को प्रोटेक्ट किया था, वो लोग ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी ट्रीज़ को बचाने के लिए। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees. He visited the village himself. There he saw the deep feeling of the villagers towards the trees and animals. जब किंग ने इसके बारे में सुना तो किंग को विश्वास नहीं हुआ कि वो लोगों ने, इतने सारे लोगों ने ट्रीज़ को बचाने के लिए अपनी लाइफ दे दी। वो गाँव गए और विज़िट किया। वहाँ पे उसने देखा कि कितनी डीप फीलिंग है विलेजर्स के दिल में ट्रीज़ और एनिमल्स को लेकर। लेट्स सी आगे क्या हुआ। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। ही ऑर्डर्ड दैट फ्रॉम देन ऑन नो ट्री वुड बी कट एंड नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया। Even today, almost 300 years past, the people of this area, called Bishnois, continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, the area is green and animals roam about freely and without any fear. विलेजर्स के दिल में जो ट्रीज़ को लेकर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी वो किंग को बहुत ग्रेटली अफेक्ट हुई और किंग ने ऑर्डर किया कि आज के बाद कोई भी एनिमल या ट्री को हार्म नहीं पहुंचाएगा। आज भी अराउंड 300 साल गुजर चुके हैं, 300 इयर्स पास्ट। पीपल जो ये एरिया के हैं खेजाड़ी, उनको बिश्नोइज़ बोलते हैं। बिश्नोइज़ एक कम्युनिटी है, वो आज भी ये प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है। मिडल ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान के बीच में एक एरिया है जो ग्रीन है और एनिमल्स जो है वो फ्रीली घूमते हैं। कोई भी फियर नहीं है उन लोगों को, वो आराम से रह रहे हैं। विदाउट एनी फियर दे आर फ्रीली रोमिंग एवरीवेयर एंड हैविंग देयर फूड। So students, how was this story? What did you learn from this story? Did you see many people sacrificed their lives for trees to save the trees? Students, do you know that this story is based on true event? This incident actually took place in this village about 300 years ago. Do you remember what Khejari people used to say? That if there are trees, we are there. Students, plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. So, plant a tree and add a new friend in your life. Hope you have understood this chapter. Bye. Take care.